Hello students, so today we are going to discuss some important portion of amines and the aldehyde, ketone and carboxylic acid. Mostly we are going to discuss conversions which are not only important for the CBSE part but also for your NEET part. Okay, so let's take some important conversion of these two chapter amines and the aldehyde, ketone and carboxylic chapter is very important. So we are taking important conversions. Okay, so let's start with the first. So suppose if I say we have to convert benzene. Suppose if you have given a benzene and you have to convert benzene into NN dimethyl aniline. Okay, so we have to convert benzene into NN dimethyl aniline. So it means we can draw this structure like this. This is my benzene एंड बेंजीन से मुझे क्या बनाना है एन एन डाइमिथाइल एनालिन तो वो कैसा होता है बेंजीन के ऊपर ऐसे एन एन डाइमिथाइल तो ये एन होगा और डाइमिथाइल एनालिन सी एच थ्री एन दी सी एच थ्री एन एन डाइमिथाइल एनालिन टिस तो अब अगर मुझे ये बनाना है तो ऑफ कोर्स मुझे पहले हमेशा नाइट्रो ग्रुप चाहिए होता है नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करके हम NH2 लगा लेंगे और फिर वो H2 हटा के हम डाइमिथाइल लेकर आ जाएंगे तो पहले नाइट्रो तो चाहिए होगा सो वी कैन डू वन थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले हम इसका नाइट्रेशन करते हैं सो इफ वी आर डूइंग द नाइट्रेशन ऑफ दिस so let's take concentrated H2SO4 and the concentrated HNO3. So if we are taking concentrated H2SO4 and the concentrated HNO3, so we are getting nitrobenzene. So NO2 group over benzene. If we are doing the reduction, so let's take FeSCl. So with the help of the metal HCl and so this is called the reduction, right? तो NO2 से मेरे को क्या मिल जाता है whenever we are doing the reduction, so NO2 converted into NH2. So this is aniline. और जैसे कि मैंने कहा था हम H2 ग्रुप को हटा के CH3 जाते हैं हम दोनों H हट जाए तो ऑफ कोर्स वी हैव टू टेक व्हाट सो वी हैव टू टेक 2 moles ऑफ CH3 आया वाई बिकॉज दो HI बाहर निकल जाएंगे 2 moles ऑफ HI बाहर निकल जाएंगे और बचेगा क्या CH3 तो वो 2 moles CH3 के इसके ऊपर लग जाएंगे so this is how we can get NN dimethyl aniline simple okay so next suppose so this is very easy now suppose if they are saying we have to convert इथेनोइक एसिड अगर हमको बोला जाए कि आपको इथेनोइक एसिड दे रखा है एंड यू हैव टू कन्वर्ट द इथेनोइक एसिड इनटू मिथेनामाइन इथेनोइक एसिड इनटू मिथेनामाइन तो इथेनोइक एसिड से मुझे मिथेनामाइन बनाना है सो हाउ कैन वी कन्वर्ट सो यस अगर मेरे पास इथेनोइक एसिड है CH3 COOH okay so and we want to convert it into हमको बनाना है CH3NH2 मिथेनामाइन बनाना है तो इसका मतलब एक तो पहली बात मुझे CO को हटाना है और CO को हटाने के लिए मैंने पहले ही बता मतलब हमेशा हमें क्या स्टेप फॉलो करना होता है तो वी हैव टू टेक SOCl2 राइट तो जब व्हेन वी टेक दी SOCl2 तो SO2 और HCl बाहर निकल जाता है और मेरे पास क्या बनकर आएगा ये देन आई विल गेट CH3COCl राइट ओके इस CH3COCl के अंदर इफ यू आर एडिंग द अमोनिया इन एक्सेस राइट तो व्हाट विल वी गेट H यहाँ से Cl यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा right and I will get CH3CONH2 this is what this is your amide and if you want to convert this amide into the amine then you have to do the of course that famous reaction Hoffman bromide degradation reaction that convert the amide this is amide CONH2 and you want only amine so you have to take RCONH2 BR RCONH2 तो यही है Br2 plus KOH then it is directly converting into the amine so from amide you can convert into amine तो इस तरीके से हम कर लेंगे राइट तो बस जब भी हमें इस टाइप का हमें इतना तो पता लग ही जाता है कि CO को हटाने तो हॉफमैन ब्रोमाइड का रोल तो आएगा ही आएगा
अब वो कैसे आएगा, तो पहले आपको Cl लेकर आए, फिर NH3 से लेके आपने Cl हटा दिया, तो वो इस तरीके से हम कर लेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन इट इज. ओके, so we have to convert the hexane nitrile into 1 amino pentane. So hexane means 1 2 3 4 and nitrile, so it means we have to include that nitrile, we can say Cn. So there are total 6 carbon here, hexane nitrile, and it is saying that 1 amino pentane, so it means on the pentane there is one amine group. Okay, so it means we have to remove this C of this cyanide, right? हमें यहाँ से ये C को हटाना पड़ेगा. तो इसके लिए तो हम एक ही चीज कर सकते हैं कि अगर ये मान लो उसको मैं CONH2 बना दूं, तो CONH2 बनाने से हॉफमैन ब्रोमाइड से CO निकल जाएगा, राइट? अब इसे CONH2 कैसे बनाया जा सकता है? हमने एक बात पढ़ी है हमेशा कि जब भी CN का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, राइट, H3O प्लस, और हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो क्या बन जाता है? COOH बन जाता है. सो इसका मतलब ये पूरा का पूरी जो चेन है ये क्या बन जाएगी? सो इट बिकम COOH. अब वही जैसे हमने ऊपर भी किया था, तो अब अगर मुझे COCl चाहिए, फिर NH3 लगा के हम CONH बना लेंगे. तो अगर मैं इसके अंदर SOCl2 डालूंगा तो ये वही बन जाएगा. एज आई सेड, बस कार्बन की चेन बड़ी हो गई है, डरा रहे हैं हमको, डरना नहीं है. तो इट विल बिकम CO CONH2, सॉरी COCl हो जाएगा ना ये. तो इट विल बिकम दी CONH2. ठीक है, तो COCl बन गया, SOCl2 लेने के बाद ही बन जाएगा मेरे पास CONH2, नहीं COCl बन जाएगा, क्योंकि हमने SOCl2 लिया है ना. इसके बाद अब अगर मैं यहाँ पे NH2 लेता हूँ, आई मीन NH3HCl लेता हूँ, NH3 एक्सेस, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? एक HCl बाहर, और ये जो पूरा का पूरा बनकर आएगा इधर की साइड मेरे पास, तो वही एज वी डिड बिफोर, तो ये आ जाएगा CONH2, बाकी का HCl बाहर. अब ये CONH2 आ गया, और मुझे अगर अमाइन बनाना है तो CO को हटाना पड़ेगा. तो ये अब अगर मुझे ऐसे बनाना है, राइट, तो इसका मतलब CO ग्रुप को हटाना पड़ेगा. तो अगेन दी सेम थिंग, हॉफमैन ब्रोमोमाइड Br2 और KOH. तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड ये CO ग्रुप को हटा देता है, राइट. तो RCONH2 से क्या बन जाएगा? RNH2. So you have to take Br2 and KOH, and finally you will get the RNH2, right? तो इसका मतलब ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है हम सबको. तो CN से COOH, देन SOCl2 से COCl आ जाएगा, राइट. तो ये कुछ कन्वर्जन्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. ओके, yes, so for here methanol, if you want to convert into ethanoic acid, तो मेरे पास अगर ये मिथेनॉल है, और मिथेनॉल से अगर मुझे क्या बनाना है? इथेनोइक एसिड बनाना है. तो यस, वेरी करेक्ट स्टेप, इथेनोइक एसिड, गुड. तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा अगर मेरे को ये मिथेनॉल दे रखा है? सो इट मीन्स, अब भाई हमें तो एक बात पता है कि अगर मेरे को अल्कोहल दे रखा होता है तो हम PCl5 लेके, यस, ठीक है, तो वी कैन टेक दी PCl5 हियर, PCl3 यू कैन ऑल्सो टेक. तो मुझे क्या मिल जाएगा? तो मुझे मिल जाएगा CH3Cl, right? Then you can take the alcoholic KCN. So alcoholic because that CN is the only thing you can convert into carboxylic acid by the hydrolysis. So that's why uh, we can take CN here. So CN can replace the Cl, and CN can come over here. And after the hydrolysis of that, H3O plus, right, hydrolysis, then you will get the CH3COOH, right, finally. So this is how we can convert methanol to ethanoic acid. Okay, fine. After that, suppose if I take the aromatic compounds also of the amines group. So suppose, of course, we know that what do you mean by the aniline? Like NH2 group over the benzene ring structure, right? So if you have the structure benzene and NH2 group is attached on that, so if you want to convert this aniline into the benzyl alcohol, so benzyl alcohol means
So benzene, benzyl, benzyl means benzene and CH2, and then you have to add the OH here. So this is benzyl alcohol. Remember, some people say benzene and OH. No, that is the phenol. If you're there saying about the benzyl, then you have to take the benzene CH2OH, right? Okay, so how can we convert aniline into the benzyl alcohol? Yes, तो हमको एनिलिन दे रखा है, एनिलिन से अगर मुझे बेंजाइल अल्कोहल बनाना है तो इसके, क्योंकि देखो हमें तो इसमें NH2 ग्रुप चाहिए ही नहीं, इस NH2 ग्रुप से इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो ये वाला पूरा ग्रुप हमें हटाना है। हमें तो सिंपल एक बेंजीन चाहिए, बेंजीन से नई शुरुआत होगी, फिर हमें CH2 लगाना पड़ेगा। तो इसमें फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन चाहिए, हमें एल्काइलेशन करवाना पड़ेगा। तो NH2 ग्रुप को हटाने के लिए हमें हमेशा क्या करना पड़ता है, डाइसोडाइजेशन एंड देन H3PO2, राइट। तो अगर मैं इसका डाइसोडाइजेशन करता हूँ तो डाइसोडाइजेशन में हम क्या लेते हैं, NaNO2 प्लस का HCl, राइट एवरीबॉडी। तो डाइसोडाइजेशन अगर मैं करूंगा इसका, तो हम लेते हैं NaNO2 प्लस HCl, ये तो पता ही है। तो ये क्या बन जाता है, बेंजीन के ऊपर N2 प्लस Cl माइनस, तो ये बन जाएगा N2 प्लस, और ये बन जाएगा Cl माइनस, दिस इज द डाइजोनियम सॉल्ट। ओके, अब अगर मैं इसके अंदर क्या डाल दूंगा, H3PO2, तो अगर मैं इसके अंदर H3PO2 डाल दूंगा और H2 ले लूंगा, राइट, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, तो ये मेरे पास सिंपल बन जाता है बेंजीन। फाइन, ठीक है। अब हमें CH2OH चाहिए, तो CH2OH चाहिए से पहले हमें CH3 भी तो चाहिए होगा, तो इसका कर देंगे हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो हम कर देंगे इसके अंदर CH3Cl और AlCl3 डाल देंगे, ठीक है। AlCl3 एनाइट्रस AlCl3 हमें लेना पड़ता है। तो ये मेरे को क्या मिल जाएगा, तो इसके ऊपर मिल जाएगा मुझे CH3, ठीक है। CH3 के बाद अब मुझे तो OH भी चाहिए, OH हम तभी ला सकते हैं जब क्लोरीन लगाओ पहले से। जो हम इसका क्लोरीनेशन करेंगे, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर CH2Cl, तो ये बन जाएगा CH2Cl। CH2Cl लेने के बाद हमें अब क्या करना है, डायरेक्टली ये बनाना होगा। तो बस Cl को हटाने के लिए हम क्या लेते हैं, तो हमें लेना पड़ेगा एक्वस, क्योंकि एल्कोहलिक तो वो लाता है ना डबल बॉन्ड, तो हमें लेना पड़ेगा एक्वस KOH। तो एक्वस KOH से KCl अपना अलग निकल जाएगा, OH अपना आ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब इसमें हमने देखो यहाँ तक का स्टेप तो सबको पता होता है, बेंजीन बन गई, फिर हमने क्या करा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, CH3 आ गया, CH3 के बाद क्लोरीनेशन Cl आ गया, Cl के बाद एक्वस KOH डालने से मेरे पास OH आ जाएगा, राइट। थोड़े से स्टेप्स थोड़े बड़े हैं, बट आई गेस कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। और ये बहुत ही कॉमन स्टेप्स है जो हमें ध्यान रखने होते हैं, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन इट इज। सी, अब मुझे बेंजामाइट से टॉल्यून बनाना है, तो बेंजामाइट का मतलब क्या होता है, वही एज आई सेड, बेंजीन के ऊपर CO और NH2, राइट। और ये मेरे पास टॉल्यून क्या होता है, तो टॉल्यून का मतलब होता है बेंजीन के ऊपर CH3। तो मुझे CONH3 से CH3 लेकर आना है। तो अब इसको कन्वर्ट करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहली बात तो देखो, अगर मैं एक काम करता हूँ, मुझे एक बात पता है कि अगर ये बेंजीन बन जाएगा तो बेंजीन से CH3 बनाना बहुत आसान होता है, क्यों, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो क्यों ना, ये तो जो भी हमने किया उसी का ही है बस। तो इसका डायरेक्टली पहले हम क्या कर लेते हैं, हॉफमैन ब्रोमोमाइड कर लेते हैं। तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड करने से क्या होगा, Br2 अगर हम Br2 और KOH अगर हम लेंगे, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, सो Br2 और KOH लेने से ये क्या बन जाएगा मेरे पास, तो CO हट जाएगा और ये मेरे पास एनिलिन बन जाएगा, क्योंकि हॉफमैन ब्रोमाइड लेने से CO ग्रुप हट जाता है और NH लग जाएगा, अमाइड से अमाइन बन जाता है। अब हमें इसका क्या करना है, हमें इसका लेना है NaNO2 प्लस HCl। तो NaNO2 प्लस HCl अगर हम लेंगे तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा बेंजीन के ऊपर N2 प्लस Cl माइनस, राइट। और जब मैं इसके अंदर H3PO2 लूंगा, H3PO2 और HCl, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, सिंपल बेंजीन, राइट। तो अभी हमने ऐसे ही तो किया। अब अगर ये बनाना है तो बस इस बेंजीन के अंदर हमें क्या डाल देना है, तो वी हैव टू ऐड दी CH3Cl एंड एनहाइड्रस कंडीशन, एनहाइड्रस AlCl3। तो बस मेरे पास क्या आ जाएगा, फिटोग्राफ एल्काइलेशन CH3 ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा, राइट। बहुत सिंपल है, जैसा भी किया था उसी के जैसे ही था।
एक बात, इस बेंजीन को हमें मेटा ब्रोमोफेनॉल अगर बनाना है, तो बेंजीन अगर मेरे पास सिंपल है, तो मुझे पहली बात तो मेटा पे ब्रोमो लाना है। और अगर मुझे मेटा पे ब्रोमो लाना है, तो इसका मतलब कोई ऐसी चीज चाहिए जो मेटा डायरेक्टिंग हो। और मेटा डायरेक्टिंग एग्जांपल क्या हो सकता है? नाइट्रेशन। भाई अगर बेंजीन पे ऑलरेडी NO2 ग्रुप हो और फिर आप अगर उसका ब्रोमिनेशन करते हो, तो वो मेटा पे आता है, राइट। और आपको फेनॉल भी चाहिए, तो एक काम करता है, तो NO2 तो लगेगा ही, तो NO2 को क्यों ना हम अमाइन बना लें NH2 रिडक्शन करके, और फिर डाइसोटाइजेशन करके N2Cl बन जाएगा। और हमें पता है N2Cl को फेनॉल कैसे बनाते हैं? हाइड्रोलिसिस करके, राइट। जिसको समझ नहीं आया वो अभी इस तरीके से समझ जाएगा। मान लो मेरे पास ये बेंजीन है, तो बेंजीन का अगर सबसे पहले मुझे कॉन्सेंट्रेटेड में नाइट्रेशन कर रहा हूँ, तो HNO3 है, और मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले रहा हूँ, राइट। तो HNO3 और H2SO4 का अगर मैं नाइट्रेशन करूंगा, तो मेरे पास सबसे पहले तो नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा बेंजीन के ऊपर। ठीक है, तो ये मेरे पास नाइट्रो ग्रुप लग गया। अब आपको क्या चाहिए? आपको ब्रोमीन चाहिए। तो अगर आप अब इसका राइट नाउ अगर ब्रोमिनेशन करोगे, तो वो ऑफकोर्स कहाँ पे आएगा? ऑर्थो पे या मेटा? ऑफकोर्स वो आएगा मेटा पे। तो इन द प्रेजेंस ऑफ Fe Br3, और हम Br2 करेंगे, तो ये मेरे पास कहाँ पे आ जाएगा? सो इट विल कम एट मेटा पोजीशन। तो ये ब्रोमीन आ जाएगा मेटा वाली पोजीशन पे, ऑर्थो पैरा पे नहीं आता। ठीक है, तो इसका मतलब मेटा ब्रोमो तो हमें मिल गया, मेटा ब्रोमो फाइन। अब मुझे फेनॉल लाना है ऊपर। अब NO2 को हटा के H2 तो तभी ला सकते हैं जब ये मेरे पास क्या बन जाए? डाइजोनियम बन जाए। तो NO2 से पहले एक काम करते हैं, पहले इसका रिडक्शन करते हैं, ताकि NH2 तो बने पहले। NH2 से तो हम बना ही लेते हैं। तो अगर आप SnCl HCl लोगे, रिडक्शन करोगे एक तरह से मतलब, तो ये क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा बेंजीन के ऊपर मेटा पे तो है ही है ब्रोमो, ये तो फिक्स हो ही गया है। अब NO2 से क्या बनाना है हमें? मतलब NH2 बन जाएगा, क्योंकि रिडक्शन करा है, O2 हट के H आ गया। अब हमें पता है कि NH2 से अगर हम डाइजोराइजेशन करते हैं NaNO2 प्लस HCl, बहुत ही मोस्ट कॉमन रिएजेंट। तो अगर अब आप इसका डाइजोराइजेशन करोगे, तो NH2 से क्या बन जाएगा? ये मेरे पास N2 प्लस, और ये बन जाएगा Cl माइनस, राइट। तो डाइजोटाइजेशन हो गया है 273 से 278 पर। तो ये मेरे पास N2 प्लस और Cl माइनस आ जाएगा, और ब्रोमीन तो लगा हुआ ही है ऑफ कोर्स। अब हमें पता है अगर ये N2 प्लस Cl माइनस है, और मुझे यहाँ पे अगर फेनॉल लेकर आना है, तो हमें क्या करना होता है? हमें करना होता है हाइड्रोलिसिस, H2। तो हाइड्रोलिसिस करोगे, तो वो N2 प्लस और Cl माइनस क्या बन जाता है? थोड़े से स्टेप बड़े हो गए हैं, बट मेन तो हमें कॉन्सेप्ट समझना है ना। तो मतलब कैसे करने से क्या होता है? तो N2 प्लस Cl माइनस हटा के क्या आ जाएगा? OH, राइट। और यहाँ पे है मेरे पास ये Br, राइट। तो ये इस तरीके से मेरे पास पूरा बनकर आ जाएगा, ये बन गया मेरे पास मेटाब्रोमोफेनॉल, राइट। तो ये था एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्स। तो इस जो ऊपर टिपिकल टाइप के हैं, वो ऑफ कोर्स हमें प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि वो कुछ भी छोटा भी पूछ सकता है। ठीक है, तो मेन हमें ये नहीं देखना है कि वो लेंदी है तो थोड़ा मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है। मेन हमें देखना है किस स्टेप से क्या होता है। तो मान लो अगर आपको नाइट्रोबेंजीन दे रखी है, और नाइट्रोबेंजीन से हमें बेंजोइक एसिड बनाना है, तो नाइट्रोबेंजीन हमें दे रखा है और हमें बेंजोइक एसिड बनाना है, तो इसका मतलब नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। अब हमें पता है कि अगर मुझे बेंजोइक एसिड बनाना है, COH बनाना है, तो अगर वहां पे साइनाइड लगा हो, क्योंकि साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से COH बनाना आसान होता है, तो इसका मतलब हमें नाइट्रो हटा के साइनाइड लाना है। तो फिर ये कैसे करेंगे हम? देखो, नाइट्रो का रिडक्शन अभी हमने बहुत देख लिया। नाइट्रो का रिडक्शन से अमाइन बनता है NH2, NH2 का डाइसोटाइजेशन करता है तो N2Cl बन जाता है। क्या ऐसी कोई रिएक्शन है जो N2Cl मतलब डाइसोनियम सॉल्ट को साइनाइड में बनाता हो? ऑफ कोर्स है। अगर बेंजीन के ऊपर N2Cl है, अगर हम CuCN और KCN डालते हैं, तो मेरे पास साइनाइड आ जाता है ना। बहुत फेमस रिएक्शन है, इस तरीके से CuCl भी होता है, Cl भी आ जाता है, राइट। तो ये वाली रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो बेंजीन अगर डाइजोनियम है, अगर आप उसके अंदर CuCN या KCN डालते हैं, तो वो CN बन जाता है। और CN का हाइड्रोलाइसिस से तो कार्बोक्सिलिक बनता ही है, ये तो हमें पता ही है। तो चलो, अगर ये मेरे पास नाइट्रोबेंजीन दे रखा है, तो बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप है। अगर मैं इसके अंदर रिडक्शन करता हूँ, मान लो FeSCl डालता हूँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? NO2 से NH2 बन जाएगा ये, राइट। अब इसका अगर मैं डाइजोटाइजेशन करता हूँ,
तो NH2 का डाइजेशन करने के लिए हमें क्या लेना होता है, एज आई टोल्ड NaNO2 प्लस का HCl। तो NaNO2 प्लस का HCl से क्या बन जाएगा मेरे पास, तो ये बन जाएगा N2 प्लस और ये बन जाएगा Cl माइनस। अब मेरे पास क्या होगा, अब देखो यही वाला स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला कुछ अनरिलेटेड सा लगता है। N2 प्लस से अगर अब मुझे इस पे क्या लाना हो, Cl लाना हो, तो आप CuCN KCN ले सकते हो। इस तरीके से CuCl Cl भी ला सकते हो, आप ब्रोमाइड भी ला सकते हो। ठीक है, 3 रिएक्शन होती हैं, तो जो भी आपको लाना है आप CuBr CuCl भी ले सकते थे अगर आपको Cl और Br चाहिए तो, लेकिन हमें साइनाइड चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, तो ये N2Cl हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, Cn आ जाएगा। राइट, N2 अपना अलग हट जाता है, CuCl अपना अलग, और ये मेरे पास साइनाइड आ जाएगा। अब हमें ये तो पता ही है भाई, साइनाइड्स का अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बन जाएगा, अगर मैं इसके अंदर H3O प्लस ले लूंगा, हाइड्रोलिसिस कर दूंगा इसकी, तो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस हमें क्या देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बेंजीन से मेरे पास क्या बन जाएगा, COOH। राइट, कितना सिंपल है। बस एक ये वाला स्टेप था जो कनेक्टिंग लिंक था, बाकी तो हम सबको पता ही है रिएक्शंस। साइनाइड का हाइड्रोलिसिस में अभी थोड़ी देर पहले भी तो किया, और बाकी तो हमें पता ही है कि NO2 से रिडक्शन करके NH2 बनता है, फिर डाइजोडाइजेशन से N2 प्लस बनता है। बस सोचना है कि क्या करने से क्या हो सकता है। नीट में तो वैसे भी खुद ही आता है कि बताओ कौन सा रिएजेंट लिया होगा ये बन जाए, या इस रिएजेंट से क्या बना होगा। तो नीट का तो और भी आसान है इसमें। ठीक है, हाँ CBSE में थोड़ा सोचना पड़ता है कि हम क्या करें कि ये बन जाए, तो ये चीज सोचने वाली है बस। तो ये हमारे पास थे कुछ कन्वर्जन्स, तो आई गेस इतने कन्वर्जन्स अमाइंस के लिए काफ़ी है। तो हमने अमाइंस के कुछ काफ़ी सारे कन्वर्जन्स लिए हैं। ठीक है, तो आई गेस वो काफ़ी हैं अभी के लिए। तो हम एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक के लिए अलग से नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो आज हम यहीं पर ही अमाइंस का यहाँ पे करते हैं समाप्त। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट यूट्यूब लेक्चर में। तो आज के लिए हम अमाइंस को यहीं पर ही करते हैं। जो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है हमने बेसिकली वो देखे हैं। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्स लिख के हम इंपॉर्टेंट कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, तो अमाइन से इतने ही इंपॉर्टेंट बनते हैं, बाकी और भी हैं तो ऑफ कोर्स एनसीईआरटी के भी कन्वर्जन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो बाय बाय, टेक केयर, आज के लिए इतना ही।